بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 33 اقساط سن چکے ہیں۔ آپ کے 34 ملاحظہ فرمائیں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجیے، اور ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع لازمن کیا کیجیے۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ گولی اس کی ران میں اتر گئی اور وہ دھاڑ مار کر چکا اور پھر پکے پل کی طرح نیچے ٹپک گیا۔ دوسرا جو شاخ پر تھا اس نے گھبرا کر رائفل اتارنے کی کوشش کی جو اس کے شانے سے لگی تھی، اور اسی اثنا میں رومی نے اس کے گھٹنے کو نشانہ بنایا۔ اس کا بھی وہی انجام ہوا۔ زمین سے چھت کی بلندی کچھ 17-18 فٹ تھی اور انہیں گولی کے زخم کے علاوہ بھی چوٹیں آئی تھیں۔ میں نے بے ساختہ داد دی، کمال کر دیا، اتنا سچا نشانہ۔ وہ فخر سے مسکرائی۔ جب میں نے ٹریننگ لی تھی تو بیسٹ شوٹر اور نشانے باز کا ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ اسے اور مجھے احساس نہیں تھا کہ بارش نے ایک بار پھر اس کی ٹی شرٹ کو نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا، اور میں اس کی طرف مڑا تو اتنے پاس پا کر چھینک گیا۔ اس نے میری شرمندگی محسوس کر کے جلدی سے بیگ سینے سے لگا لیا۔ اب طوفان باد و بارہ صرف بارش میں ڈھل گیا تھا۔ ہوا رک جانے سے بوچھاڑوں کی بجائے اوپر سے بہت تیز بوندیں گر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تم اس طرف سے دیکھو اور میں اس طرف نگرانی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف سے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہوں اور ہم بے خبری میں مارے جائیں۔ وہ سر ہلاتی ہوئی دوسری طرف بڑھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر نیچے جھانکا تو وہ دونوں غائب تھے، شاید دونوں درختوں تلے چلے گئے تھے۔ کھلی جگہ وہ غیر محفوظ تھے، حالانکہ رومی نے ان کے ساتھ رحم دلانہ سلوک کیا تھا۔ وہ چاہتی تو ان کے سروں میں بھی سوراخ کر سکتی تھی، مگر اس نے ان کے پیروں کو نشانہ بنایا تھا۔ میں نیچے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور کچھ ہی زیادہ ہی آگے جھک گیا تھا کہ میرے عین نیچے موجود مسلح آدمی نے شاٹ گن سے فائر کیا اور گولی میرے چہرے کے اتنے پاس سے گزری کہ میں نے اس کی حدت بھی محسوس کی تھی۔ اگر میں 2 انچ آگے یا گولی 2 انچ ادھر ہوتی تو میں اپنے چہرے سے محروم ہو جاتا۔ بدحواس ہو کر میں نے بے ساختہ پستول کا رخ نیچے کر کے 2 گولیاں داغ دی اور جواب میں فائر کرنے والے کی بھیانک چیخ سنائی تھی، لیکن میں نے جھانک کر دیکھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ بلف کر رہا ہے اور جیسے ہی میں اس کا انجام دیکھنے کے لیے سر نکالوں گا وہ میرے سر میں ٹھک سے سوراخ کر دے گا۔ میں نے مڑ کر رومی کی طرف دیکھا تو اس نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے اشارے سے اسے جواب دیا کہ شاید ایک اور لڑک گیا ہے۔ چھت بہت وسیع تھی اور حیرت کی بات تھی کہ اس کے اوپر آنے کے لیے نہ تو اندر سے کوئی سیڑھی تھی اور نہ ہی باہر سے کوئی سیڑھی تھی۔ صفائی ستھرائی اور دیگر کاموں کے لیے شاید لکڑی کی سیڑھی استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے چاروں طرف 3 فٹ اونچی مونڈیر تھی، بالکل وسط میں آتش دان کی چمنی تھی۔ میں نے کسی قدر وقفے سے ذرا فاصلے سے جا کر ایک لمحے کے لیے نیچے جھانکا اور سر اندر کر لیا۔ اس لمحاتی جھلک میں نیچے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے دوبارہ جھانکا اور اس طرف دیکھا جہاں مجھ پر شاٹ کا آزمانے والا موجود تھا تو اس کی جگہ بھی کوئی نہیں تھا۔ میں رومی کی طرف مڑا تو وہ مجھے ہی متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اشارے سے بتایا کہ بائیں طرف والی گلی میں 2 افراد تھے۔ میں اس کے پاس آیا اور اس نے نیچے دکھایا۔ یہاں چھت کے ساتھ لگا چھجا صرف 6 انچ کا تھا، اس لیے ذرا جھانکنے پر وہ دونوں دکھائی دیے جو دیوار کے ساتھ چپک کر عقبے سے مچا رہے تھے۔ میں نے اشارے سے پوچھا کہ ان کا کیا کرنا ہے اور رومی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اس کا مطلب تھا کہ وہ اندھا دھند فائر کی صورت میں مارے بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ قتل کے ارادے سے آئے تھے اور اس صورت میں ہم ان کی جان کی پرواہ کرتے تو خود مارے جاتے۔ میں واپس آیا اور دوبارہ نیچے دیکھا۔ ہمیں چھت پر آئے ہوئے 15 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے اور فائرنگ ہوئے بھی اتنا ہی وقت گزر چکا تھا، مگر آس پاس کوئی ایسی ہلچل یا سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی تھی جس سے پتہ چلتا کہ لوگوں نے فائرنگ کا نوٹس لے لیا ہے۔ اس فائرنگ میں کئی طرح کے ہتھیار استعمال ہوئے تھے۔ شاٹ گن کا دھماکہ بم سے کم نہیں تھا اور خودکار ہتھیار کا برسٹ بھی دور تک سنا گیا ہوگا، لیکن یہ بڑی کوٹھیوں کا علاقہ تھا جہاں بقول شاداب کے لوگ اس قسم کی باتوں کا زیادہ نوٹس نہیں لیتے ہیں، اور کئی کوٹھیاں بالکل ویران تھیں، شاید اس لیے بھی کہ کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے اگر پولیس کو اطلاع کر دی ہوگی تب بھی کیا اس کے آنے کا امکان تھا، اور اس کا جواب خاصا مایوس کن تھا۔ پولیس کے آنے کا بظاہر دور تک امکان نہیں تھا۔ ہماری پولیس اس وقت حرکت میں آتی ہے جب اوپر سے حکم آتا ہے یا اسے نوٹوں کی خوشبو آتی ہے، پر نہ صرف عوام کے لیے وہ بمشکل ہی حرکت میں آتی ہے۔ یہاں بھی عوام کا مسئلہ تھا، اس لیے ان کا آنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ ہمیں اپنی جانیں بچانے کے لیے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ میں نے چھت کے اسی کونے سے جھانکا جہاں سے بال بچا تھا
इस तरफ आने वाले दोनों अभी कोने से जरा दूर थे। इनकी पुश्त दीवार से लगी थी और हाथ आगे थे जिनमें बड़े हथियार नजर आ रहे थे। रोमी अब सामने वाली तरफ और बाएं तरफ झांक रही थी। उसने अपने पास मौजूद कॉम्पैक्ट आईना इस्तेमाल किया था। वो उसे निकालकर उससे नीचे देख रही थी और फिर एक फायर हुआ और आईने के टुकड़े उड़ गए। रोमी ने चीख मारी थी। मैंने मुड़कर देखा तो उसने हाथ झटकते हुए ओके का इशारा किया। वो बच गई थी। फिर उसने उंगलियों से बताया कि इस तरफ 2 आदमी और थे। वो कुल 7 आदमी थे, जिनमें से 3 नाकारा हो गए थे, मगर 4 भी कम नहीं थे, जबकि वो पूरी तरह मुसल्ला भी थे। इनके मुकाबले में हमारे पास सिर्फ 2 पिस्तौल थे और हमें एक ही फायदा था कि हम इस छत पर महफूज थे। जब तक वो ऊपर नहीं आते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। छत पर आने के लिए अगर कोई सीढ़ी थी तो वो मुझे नजर नहीं आई और इसके अलावा वाहिद रास्ता दरख्त की शाख थी। जो दूसरी शाखें छत तक आ रही थीं वो इतनी मजबूत नहीं थीं कि इनसे छत तक आया जाता। कोई पाइप नहीं था और छत पर कोई टैंकी नहीं थी जिसका पानी नीचे ले जाने के लिए पाइप होते। बारिश इसी जोरों शोर से जारी थी, इसलिए ना तो हम उनकी आवाजें सुन सकते थे और ना वो हमारी आवाजें सुन सकते थे। बादल मजीद गहरे और स्याह हो गए थे। दरअसल बादल स्याह नहीं हुए थे, बल्कि सूरज मगरिब की तरफ झुक जाने से रात जैसा समा हो रहा था और कुछ देर बाद शायद तारीकी ही छा जाती। तारीकी हमें जान बचाने और फरार में मदद दे सकती थी। रोमी हस्बे मामूल दबे कदम आई और उसने मेरे शाने पर हाथ रखा तो मैं एक बार फिर उछल पड़ा। मैंने खफगी से कहा, तुम बताकर नहीं आ सकती? मौका नहीं है, वो बोली। यहां से निकलने का एक रास्ता समझ में आया है। कैसा रास्ता? हम इस चिमनी से नीचे जा सकते हैं और उसके बाद कोठी में कैद हो जाएंगे। कैसे कैद हो जाएंगे? उसने सवाल किया। दरवाजे बाहर से चाबी से खुलते हैं, अंदर से इनको आराम से खोला जा सकता है। उसकी बात काबिल गौर थी, लेकिन नीचे कैसे जाएंगे? ये चिमनी यहां से बड़ी है, अगर नीचे जाकर तंग हो गई तो हम वापस भी नहीं आ सकेंगे, इसलिए पहले मैं जाऊंगी, उसने हौसला करके कहा। मेरी जसामत कम है और अगर मैं फंसी तो तुम मुझे वापस खींच लोगे। वो कैसे? मेरे पास कोई रस्सी नहीं है। रस्सी है, उसने इशारा किया। वो देखो, परनाले को थामे रखने के लिए इस रस्सी बांधी हुई है, वही काम आएगी। रूमी अपने पास छोटे से चाकू से रस्सी काट कर ले आई। ये तकरीबन 12 फुट लंबी सूत की रस्सी बनी हुई थी, पुरानी लेकिन मजबूत थी। मैंने चिमनी की बुलंदी देखी और फिर एतराज किया। इसकी बुलंदी 8 फुट है और इस सूरत में तो कम से कम 25 फुट की रस्सी दरकार होगी। मैं सिर्फ जरा नीचे जाऊंगी, अगर मुझे रास्ता नजर आया तब भी उतरूंगी, वरना वापस आ जाऊंगी। हमने एक बार फिर नीचे झांका तो दुश्मन बदस्तूर दीवारों से चिपके हुए थे। हम फिर चिमनी तक आए। मैंने रस्सी का एक सिरा अपनी कलाई से बांधा और दूसरा सिरा रूमी ने अपनी कलाई से बांध लिया। मैंने सहारा देकर उसे ऊपर किया तो उसने चिमनी की छत उखाड़ फेंकी। ये बस नाम नेहाद ही टिकी थी, आराम से निकल गई। उसने दीवार पर हाथ जमा कर खुद को ऊपर किया और फिर दोनों पांव चिमनी में करके नीचे उतरने लगी। वैसे वो पुलिस वुमेन थी, मगर इस वक्त ज्यादा हौसले का मुजाहिरा यूं कर रही थी कि चिमनी में हजरातुल अर्ज की पूरी कॉलोनी आबाद हो सकती थी। नीचे जाते हुए उसकी हल्की फुल्की चीखें सुनाई दे रही थी। मेरे कान उसकी तरफ और नजर शीशम के दरख्त पर लगी थी। दुश्मन इसी सम्मत से नमदार हो सकता था और वो इसी तरफ से आया। हरकत महसूस करते ही मैं तेजी से चिमनी की आड़ में हुआ था और चलाई जाने वाली गोलियां चिमनी पर आकर लगी। अंदर से रूमी ने चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ? वो दरख्त पर चढ़ाए हैं, मैंने जवाब दिया और फिर दुश्मन को जवाब दिया। मैंने 2 गोलियां चलाई और दुश्मन जल्दी से पीछे हट गया। वो भी नीम तारीकी का फायदा उठाते हुए ऊपर आने में कामयाब रहे थे। अगर वो मुझे देखते ही उजरत में हरकत न करता तो शायद मुझे उसकी आमद का पता भी न चलता और उसी ने मेरी जान बचाई थी। रूमी अंदर से चिल्लाई, सैफ अंदर आ जाओ, यहाँ नीचे उतरने की जगह है। पहले तुम नीचे उतरो, मैंने कलाई से रस्सी खोलते हुए कहा। जब तक मैं इन लोगों को रोक रहा हूं, मैं उतर रही हूं। यहाँ चिमनी सीधी है और इसमें पत्थर उभरे हुए हैं। ऊपर आने वाला दुश्मन दीवार की आड़ में था और वहीं से वक्फे से उठकर मुझ पर गोलियां बरसा रहा था। मुझे लग रहा था कि इसके होते हुए मैं इतनी आसानी से नीचे नहीं उतर सकूंगा। चिमनी में उतरते हुए मैं इसके लिए बहुत आसान निशाना बन जाता। अगर उसे निशाना बनाने के लिए आगे जाता तब भी मेरे निशाने बन जाने के इम्कानात ज्यादा थे। अगर उसे निशाना बनाने के लिए मैं आगे जाता तब भी मेरे निशाना बन जाने के इम्कानात ज्यादा थे। मुझे ख्याल आया और मैंने रूमी से कहा, तो मेरी आवाज सुन रही हो? उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने चिल्लाकर कहा और इस बार भी उसे सुनाई नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो चिमनी से निकल गई है और अब मेरी आवाज भी उस तक नहीं जा रही। मैंने पलट कर देखा और चिमनी की आड़ लिए हुए कोठी के सामने वाले हिस्से की तरफ आया। मैंने नीचे झांक कर देखा तो मुझे जंगल नुमा सेन में कोई फर्द दिखाई नहीं दिया था। इम्कान यही था कि गाड़ी में यही 7 अफराद थे और यह भी खासी बड़ी पार्टी थी।
ऐसा लग रहा था कि गौहर शाह ने अपनी सारी अफराधी कुव्वत मेरे खात्मे के लिए मुख्तस कर दी थी। इसके बावजूद मौहूम सा इम्कान था कि कोई बरामदे में ना मौजूद हो। मैं नीचे झांक रहा था कि अचानक पीछे से फायर हुआ और गोलियां मेरे आस पास से गुजर गईं। मैं जल्दी से दीवार के दूसरी तरफ 2 फुट की मुंडेर पर उतर गया। दरख्त पर चढ़े दुश्मन ने देख लिया था कि मैं चिमनी से हटकर मुंडेर तक चला गया हूं। इस छज्जे के नीचे आराइशी सतून थे। मैंने झुककर देखा तो मुझे बरामदा खाली दिखाई दिया और मैं एक सतून पकड़कर नीचे उतरने लगा था कि मेरा हाथ स्लिप हुआ। बारिश की वजह से सतून फिसलवा हो रहा था। मैं तेजी से नीचे गया और मेरा पांव सीमेंट की जाली तार रेलिंग से टकराया और मैं उलटकर कच्चे में गिरा। पत्तों के ढेर ने मुझे चोट से बचा लिया था, मगर पांव में चोट आई थी। मैं कराते हुए उठा और कोठी के दाखिली दरवाजे की तरफ भागा। इसीलिए मैं दरवाजा खुला और रोमी भूत बनी बाहर आई। उसने ठीक कहा था कि दरवाजे अंदर से खोले जा सकते थे। चिमनी की सारी कालक उसे चिमट गई थी। उसने पिस्तौल सामने कर रखा था। मुझे देखकर भड़की और फिर दंग रह गई। शुक्र है उसने गोली नहीं चलाई। तुम यहां कैसे आए? बातों का वक्त नहीं है। मैं बाइक की तरफ लपका। यहां से निकलना है। मैंने बाइक सीधी करके चाबी लगाई और किक मारी। एक किक में वो स्टार्ट हुई और रोमी मेरे पीछे आकर बैठ गई। इस बार उसने दोनों पांव दाएं बाएं रखे और मेरी कमर में हाथ डालकर जकड़ लिया। मैंने एक्सीलेटर दिया था कि बाएं तरफ से एक मुसल्ला शख्स नमूदार हुआ। वो अपनी राइफल सीधी कर रहा था कि रोमी ने उसे शूट कर दिया और वो लट्टू की तरह घूम कर गिरा था। दर हकीकत मैंने उसे घूमते देखा था। इसके बाद बाइक आगे निकल गई और मेरी सारी तवज्जो रास्ते पर थी। अकब से फायर हुए मगर गोली ने हमारी तरफ रुख करने से गुरेज किया और हम गिरे गेट से बाहर निकल गए। स्याजीब गेट के बिल्कुल सामने थी और उससे एक आदमी उतर रहा था। उसने बाइक आते देख ली थी। अभी उसका पांव बाहर आया था कि मैंने बाइक दरवाजे पर मारी और उसका पांव दरवाजे और बाडी के दरमियान पिस कर रह गया। हड्डियां टूटने की आवाज उसकी चीख में दब गई थी। मैंने बाइक जरा पीछे की और जीप के बराबर से निकालता हुआ चला गया। शानदार है, रूमी ने अकब से कहा। तुमने बर वक्त इसे नाकारा किया, वरना वो नीचे आकर हमें आराम से शूट कर देता। पीछे देखो और कोई ना हो। मैंने बाइक दोबारा उसी सरकारी कॉलोनी में घुसा दी और खाली मैदान से होता हुआ दूसरी तरफ निकल आया। यह शायद गुलबर्ग का कोई इलाका था, क्योंकि जीप से बचने के लिए मैं गार्डन के पास से मुड़ गया था और इस तरफ गुलबर्ग ही था। हम इसी टूटी दीवार से निकले और वापस रवाना हो गए। रूमी ने बर वक्त मुझे टोका, अगर कोई और पार्टी भी हुई तो वो फिर पीछे लग जाएगी, तब क्या करूं? वापस चलो, हम घूम कर चलते हैं। इस हैबत कुजाई के साथ जो तुम बनाकर आई हो, वो हंसी फिक्र मत करो। तुम चिमनी में नहीं उतरे मगर तुम्हारे हिस्से की कालक तुम्हें लग चुकी है। बाकी उसके कालक से भरे हाथ मेरी शर्ट पर दाग डाल चुके थे। पीछे तो वो पूरी तरह लगी बैठी थी, मगर पुश्त पर बंधे बैग की वजह से मैं कालक और उसके लम्स दोनों से बच गया था। वैसे भी देखने वाला कौन है, और अगर बारिश इसी तरह होती रही तो ये धुल भी जाएगी। मैंने बाइक मोड़ ली थी और ग्राउंड की तरफ जा रहा था। वहां से AR बाजार के पास पहुंचे। रूमी का हाथ बैग की वजह से मेरी कमर गिरफ्त नहीं कर पा रहा था। इसके हाथ बार बार फिसल रहे थे। उसने कहा, 1 मिनट के लिए कहीं रुको। क्यों? मुझे तारिक को कॉल करनी है। मैंने बाइक की कमारत के साथ रोक दी, जिसके नीचे दुकानें थी और इनके आगे शेड्स बने हुए थे। यहां बारिश से बचाव मुमकिन था। हम उतर कर शेड के नीचे आ गए। वो मोबाइल निकाल रही थी और बारिश की बौछार से बचने के लिए मुमकिन हद तक दुकान के शटर के साथ लग गई थी। मैंने पूछा, तुम तारिक को अंकल क्यों नहीं कहती? क्योंकि मैं उसे अंकल नहीं समझती, उसने जवाब दिया और तारिक को कॉल करने लगी। बारिश की वजह से इस अहम सड़क पर रश कम था। गाड़ियां आ जा रही थीं और इक्का दुक्का पैदल अफराद थे जो रूमी को घूरते हुए जा रहे थे, और मैं जिस बिज हो रहा था। कई बार नाकाम कोशिश के बाद उसने मायूसी से कहा, नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या बात है, तुम कोई ढंग की शर्ट नहीं पहन सकती थी? हर शख्स घूर रहा है। मुझे क्या मालूम था कि बारिश हो जाएगी, वैसे तो ढंग की है, उसने किसिया कर कहा और हंसपे मामूल बैग सीने से लगा लिया। अब हमें घर जाना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन दुश्मन की वहां मौजूदगी अहन मुमकिन है। वो वहीं से तो हमारे पीछे लगे थे। हम बराह रात नहीं जाएंगे। वो बेचैन हो रही थी। अब चलो। मैं खुद भी चाहता था कि जल्द अज जल्द वहां से रवाना हुआ जाए, ताकि मुझे इस कोफ से निजात मिले जो लोगों के रूमी को घूरने से हो रही थी। हम एक बार फिर समना आबाद की तरफ रवाना हुए, लेकिन इस बार जरा मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया गया था। हम घूम कर पहुंचे और बाइक अकबी गली से मकान तक लाए। ये छोटी सी गंदी गली थी और यहाँ सचमुच बहुत गंदगी थी। लोगों का मुद्दतों से फेंका हुआ कचरा सड़ रहा था और उसकी बदबू दिमाग खराब कर रही थी। हम नाक पर हाथ रखकर मकान तक आए। एक अकबी दरवाजा था। मैंने बेल बजाने की कोशिश की तो मुझे करंट लगा और रूमी हंसी। बारिश में बेल बजाने की कोशिश का यही नतीजा निकलता है। तब अंदर कैसे जाएं? रूमी ने आस पास देखा और बोली, अंदर कूद जाओ और इस दरवाजे को खोल दो।
इसे बजाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, अंदर आवाज नहीं जाएगी। वो ठीक कह रही थी। बारिश का शोर इतना था कि इसमें बेल की आवाज शायद ही तारे के कानों तक पहुंचती। छोटा लोहे का गेट तकरीबन 7 फुट ऊंचा था, मगर इसमें डिजाइन बना हुआ था। मैं इसकी मदद से बआसानी ऊपर चढ़ गया और अंदर कूद गया। कुंडी खोलकर रूमी को अंदर आने का मौका दिया और फिर हम अकबी बरामदे में आए। यहाँ किचन की तरफ से एक दरवाजा खुलता था। रूमी ने उसे खोलने की कोशिश की तो अंदर से बंद निकला। उसने कहा सामने से जाना होगा। हम गली से घूमकर सामने वाली तरफ आए तो पोर्च में तारिक की मेहरान कार नहीं थी, वो कहीं गया हुआ था। मगर जब रूमी ने दाखिली दरवाजा चेक किया तो वो खुला हुआ था। उसने परेशानी से कहा कोई गड़बड़ है, तारिक इस तरह दरवाजा खुला छोड़कर नहीं जा सकता। गड़बड़ के आसार अंदर दाखिल होते ही नजर आ गए थे। निशिस्तगाह में सामान बिखरा हुआ तो और आराम कुर्सी उल्टी पड़ी थी। रूमी पर्स से पिस्तौल निकालती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। मैंने भी पिस्तौल निकाल लिया था और आहिस्ता से कहा मैं नीचे जा रहा हूं, तुम ऊपर देखो। मैंने तहखाने का रुख किया था और इसका खुला दरवाजा पाकर आगे की कहानी जान ली थी। फिर भी मैंने एहतियातन अंदर देखा और वहां से कैदी गायब था। लेकिन यह कहना मुश्किल था कि वह खुद गायब हुआ था, क्योंकि तहखाने का दरवाजा सलामत था और इसे बाहर से खोला गया था। आसार से लग रहा था कि गौहर शाह के आदमी यहां आ चुके थे। मैं ऊपर आया तो रूमी पूरे घर का जायजा ले चुकी थी। इसका चेहरा सुता हुआ था। उसने आहिस्ता से कहा तारिक के कमरे में ज्यादा गड़बड़ है, वहां खून भी पड़ा है। मैं तारिक के कमरे में आया जहां पहले ही फैलावा कम नहीं होता था, मगर इस वक्त वहां सचमुच चीजें फैली हुई थी। तारिक का लैपटॉप गायब था और बिस्तर के पास फर्श पर कुछ मिकदार में खून भी था, जो आमतौर से अंगूठा कटने से भी निकल आता है। लेकिन अगर किसी को ऐन दिल पर गोली लगे तब भी आदमी फौरन मर जाता है और इससे भी कम खून निकलता है जितना कि यहाँ पड़ा हुआ था। मैंने रूमी से कहा यहाँ से जाना होगा, अगर वो तारिक को ले गए हैं तो जल्द वापस आएंगे। वो अपने कमरे की तरफ लपकी। चंद मिनट बाद वापस आई तो उसके शाने पर एक छोटा हैंड कैरी था। इसने मुमकिन हद तक मुंह और लिबास साफ कर लिया था, मगर अब भी कहीं कहीं कालक लगी हुई थी। हम बाहर आए। उसने मुझसे कहा मुझे मकामी पुलिस से राब्ता करना होगा, लेकिन इससे पहले मुझे हुलिया ठीक करना है। तुम कहाँ रहते हो? एक हॉस्टल में, मैंने कहा, लेकिन मुझे वहां किसी को लाने की इजाजत नहीं है, इमरजेंसी में भी नहीं। मैं सोच में पड़ गया। हॉस्टल के अलावा उसे सिर्फ हुमैरा के हान ले जा सकता था, मगर वो पहले ही उसके बारे में मशकूक थी। इसलिए मैंने हॉस्टल जाने का फैसला किया और इससे कहा कोई चादर ले लो वरना वहां तमाशा बन जाएगा। पता नहीं यहाँ के लोगों के साथ मसला क्या है। वो खफकी से बोले बाहर औरतें न होने के बराबर कपड़ों में घूमती हैं और कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता। कितनी ज्यादती की बात है। मैंने सर हिलाया। फिर भी मुतवज्जा नहीं होता कोई। वैसे ये बेहयाई अभी यहाँ नहीं आई है और इंशाल्लाह हमारी आवाम आने भी नहीं देगी। या जामे से बाहर खवातीन की कैसी पजीराई होती है ये तो तुमने भी देख लिया होगा। उसका मुंह बन गया, मगर वो चादर लेकर बाहर आई। हम उसी रास्ते से बाहर आए और रवाना हो गए। इस बार मैंने खास तौर से ताक़ुब का ख्याल रखा था, मगर ऐसा लग रहा था कि दुश्मन अगर तारिक के घर की निगरानी कर भी रहा था तो वो सामने की हद तक महदूद था। इसने पीछे की निगरानी करने की कोशिश नहीं की थी। रूमी को आदत नहीं थी और चादर लेकर बाइक पर बैठना और भी मुश्किल काम था। ऊपर से मेरी पुश्त पर बंधे बैग से उससे मुश्किल हो रही थी। उसने चुंझला कर कहा इस मुसीबत को तो हटाओ। इससे मुसीबत ना कहो, इसमें एक फकीर की पूरी 3 साल की कमाई है। मैं बैग साइड पर भी कर सकता था, मगर मैंने जानबूझकर पुश्त पर लिया हुआ था। दूसरी सूरत में वो जिस तरह से बैठी हुई थी, इसका ये पोज मेरे लिए मुसीबत बन जाता। मुसलसल बारिश से बेशतर सड़कें और गलियां नहरों में बदल चुकी थी और ऐसे में ड्राइव करना आसान नहीं था। जगह जगह खुले हुए मेन होल और गड्ढे हादसे का सबब बन सकते थे, मगर हम किसी न किसी तरह बिना किसी हादसे के हॉस्टल तक पहुंचने में कामयाब रहे। अंदर दाखिल हुए तो खुशकिस्मती से शफीक काउंटर पर नहीं था। मौका गनीमत जानकर मैं रूमी को ऊपर ले आया और कमरे में आकर दरवाजा बंद करके सरगोशी में उससे कहा गैर जरूरी आवाज निकालने से गुरेज करो और ऊंची आवाज में तो बिल्कुल ना बोलो। उसने सर हिलाया। मैं चुप रहूंगी लेकिन मुझे बात लेना है। बाथरूम ये रहा। मैंने इशारा किया। वो बैग से कपड़े निकाल कर अंदर चली गई। मैंने अपने मोबाइल का मुआयना किया जो बंद था और उसे ऑन करने की कोशिश की तो उसने ऑन होने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था पानी अंदर तक चला गया था। मैंने बैटरी और सिम अलग की, इन्हें खुश कपड़े से साफ किया और फिर लगाया, मगर इस बार भी मोबाइल ने ऑन होने से इनकार कर दिया। मुझे ख्याल आया कि इसे आग के पास रखा जाए तो इसके अंदर की नमी खुश्क हो जाएगी और ये फिर से काम करने लगेगा। बारिश के बाद मौसम खुनक और खुशगवार हो गया था। मैंने इसे ऑन करके इसे हीटर पर किया और ब्लोअर आहिस्ता करके मोबाइल इसकी हवा फेंकने वाली जाली में टिका दिया। मेरे कपड़े भी भीगे हुए और कीचड़ ज़्यादा हो रहे थे। फिर रूमी ने अपनी अच्छी खासी कालिक मुझे भी मुंतकिल की थी। मुझे शिद्दत से नहाने की जरूरत थी। रूमी शुरू में तो खामोश रही थी, लेकिन फिर उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद वो धीमे सुरों में गाने लगी थी।
इससे पहले ये धीमे सुर बुलंद होते, मैंने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, खुदा के लिए तुम्हारी ये सुरीली आवाज सुनकर पड़ोसी और हॉस्टल का मालिक इंक्वायरी के लिए आ जाएंगे। ओके बास, वो हंसी, नो सिंगिंग। इसीलिए मैं दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे करम खान का ख्याल आया, शायद वो आया था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे हाथों के तोते उड़ गए। बाहर हुमैरा खड़ी थी। तुम? मैंने मुश्किल कहा। ऊपर कैसे आई? जैसे आप आए, वो बोली। मतलब ये कि यहाँ किसी को कमरे में लाने की इजाजत नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। गेस्ट के लिए नीचे लाउंज है, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? बस आप रोक रहे हैं और नीचे कोई है नहीं तो रोके, कहा उसने सादगी से कहा।